شوگر کے مریض ہیں ان کی تربیت اور رہنمائی کے لیے ہم ہر سال کرتے ہیں. باقاعدہ ہمارا یہ روٹین ہے, آپ لوگ جانتے ہیں سارے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں پر, اور ان پر فرض کیے گئے ہیں. یہ بالکل واضح سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد پھر ایک اور دوسری آیت میں کہا ایام معدودات, فمن کان مریضا او علی سفر ایام الاخر, یعنی ایک لسٹ بھی دی ہے اللہ میاں نے قرآن کے اندر کہ یہ لوگ نہ رکھیں. ان میں واضح جو آیت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کون ہے؟ مسافر, مریض اور کمزور حضرات, بوڑھے حضرات. ان کے لیے تو بالکل واضح ہے. اب وہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ تشریح جب کی گئی اس کی کہ مریض تو مجھے چھینک آ گئی اور میں روزہ نہ رکھوں, بہانہ کر دوں, میں تو مریض ہوں, قرآن کہتا ہے مریض روزے نہ رکھیں, تو وہ غلط ہے. مریض کی تشریح جو ہے پھر علماء نے اجتہاد کے ذریعے کی اور یہ بتایا کہ مریض اصل میں کون ہے, کون سے مریض کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تو وہ تمام علماء نے ایک کیٹیگری بنائی ہے, تمام علماء نے تمام فیصلے کیے ہیں, اور وہ فیصلے کہاں کیے ہیں؟ اور انٹرنیشنل سطح پر جو علماء کا بورڈ ہے جو جامعہ الازہر کے زیر نگرانی کام کرتا ہے, انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے انڈر میں کام کرتی ہے ایک ایسوسیشن جس کا نام ہے ڈار ڈائبٹیز اینڈ رمضان الائنس کے نام سے. وہ تمام اسلامی ملکوں پر مبنی ایک بورڈ بنا ہوا ہے. وہ بورڈ میں تمام دنیا کے علماء شامل ہیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل ہیں, اور سب نے متفقہ طور پہ یہ کیٹیگریاں بنا دی ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں یہ شوگر کے مریضوں کو نہیں رکھنا چاہیے, اور یہ کو احتیاط سے رکھنا چاہیے, اور یہ کو بے فکری سے رکھنا چاہیے. شوگر کے جو مریض فائدہ اٹھا سکتے ہیں روزے سے, ان میں وہ شوگر کے مریض ہیں جو ابھی شوگر کے مریض تازہ نئے ہوئے ہیں اور وزن ان کا زیادہ ہے, اور ان کو ہم وزن کم کرنے کا کہتے ہیں, تو وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں روزے سے. شوگر کے جو بالکل نیولی ڈائگنوزڈ اور وزن زیادہ والے, یعنی ابھی نئے تشخیص ہوئی ہے شوگر ان کی اور وزن ان کا زیادہ ہے, انہیں بے تحاشا فائدہ ہو سکتا ہے روزے سے. تو عبادت کی عبادت, اللہ کی طرف سے فرض کا فرض, اور وہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا پلان کرنا ہوگا ان کو کہ شہری اور افطار کے جو آداب ہوتے ہیں ان میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ شوگر گرنے نہ پائے, شوگر بڑھنے نہ پائے, کیونکہ رمضان میں روزے رکھوانے میں شوگر کے مریض کو 4 خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ 4 خطرات میں سے نمبر 1 تو ہے شوگر کا اچانک بڑھ جانا, بہت زیادہ شوٹ کر جائے گی شوگر, شہری میں دبا کے کھا لیا, افطار میں بھی دبا کے کھا لیا, اور ہضم ہوا نہیں تو وہ شوگر ایک دم شوٹ کر سکتی ہے. اچھا والا کنٹرول پورا سال لے کے چل رہی ہیں آپ, اور اچانک سے رمضان میں وہ شوگر کا کنٹرول آؤٹ ہو گیا. تو پہلا خطرہ جو روزے رکھوانے میں ہے, یہ خطرہ یہ ہے کہ آپ کی شوگر آؤٹ ہو جائے گی, اور شوگر آؤٹ ہوگی تو پھر سارے مسائل پیدا ہوں گے. دوسرا خطرہ کیا ہے بھائی؟ گر بھی تو سکتی ہے, اچانک گر بھی جائے گی, کیونکہ 15-16 گھنٹے کا جب روزہ رکھوائیں گے تو عام حالات میں تو شوگر کے مریضوں کو ہم یہ ہدایت دیتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہو, تھوڑا سا کھا لیا, پھر تھوڑا سا کھا لیا, پھر تھوڑا سا, ایک دم بڑے کھانے نہ کھاؤ. وہ جو ہمارے ڈائبٹک ایجوکیٹر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں, یہی بتاتے ہیں کہ بڑے کھانے نہ کھاؤ, چھوٹے کھانے کھاؤ. لیکن رمضان میں 15 گھنٹے تک نہیں کھانا ہے, بس جو ہلکی پھلکی سحری کر لی بس وہی سحری ہے. تو دوسرا خطرہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دوپہر تک آتے سپہر تک آتے آپ کا شوگر ایک دم گر جائے. اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا. یہ جو لفظ یہاں لکھا ہوا ہے ہائپوگلائسیمیا, اس کا مطلب ہے شوگر کا گر جانا. اور وہ جو ایک پیچھے بینر لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہائپر گلائسیمیا, اس کا مطلب ہے شوگر کا بڑھ جانا. تو 2 خطرات تو یہ ہو گئے. میں نے ابھی ذکر کیا کہ 4 خطرات. تیسرا خطرہ کیا ہے؟ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ جب 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور شوگر اس کی وجہ سے اگر بڑھ جاتی ہے آپ کی, تو خون میں پانی کی کمی اور تیزابیت کی وجہ سے ایک کنڈیشن, بے ہوشی کی ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں DKA, ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. وہ اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے, اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ بے ہوشی, نقاہت, کمزوری اور بہت ساری دوسری علامات ہوتی ہیں, اور اس میں شوگر ایک دم تیزی سے شوٹ کر جاتی ہے اور خون میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے, اسی لیے اس کو بولتے ہیں ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. چوتھی کنڈیشن جو ہے وہ ہے پانی کی کمی کی وجہ سے. جب پانی بہت ہی کم ہو جاتا ہے, سارا دن پانی نہیں مل رہا ہے پینے کو, تو پانی کی کمی کی وجہ سے خون میں کلاٹس بننے لگتے ہیں, خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اور خون میں جب بھی کلاٹ بنیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ خون میں جب بھی پھٹکیاں بنتی ہیں تو جب یہاں اٹکتی ہیں وہ پھٹکیاں, تو کارڈیو کا ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو, اور اگر یہاں جمتی ہیں تو فالج کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہ جسم میں کہیں بھی وہ پھٹکیاں جم کے وہ کسی نہ کسی ایمرجنسی میں آپ کو مبتلا کر سکتی ہیں. تو یہ جو 4 خطرات ہیں, ان خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. روزہ رکھنا پہلے تو یہ فیصلہ آپ کو خود نہیں, اکیلے نہیں کرنا ہے کہ میں رکھوں یا نہیں رکھوں, یہ فیصلہ ڈاکٹر سے کروائیں. ڈاکٹر آپ کو سب سے پہلے کیٹیگرائز کرائے گا, کیونکہ ڈاکٹر ہی کو یہ نالج ہے کہ آپ کو روزے کی صورت میں کن کن خطرات کا سامنا ہے. تو وہ آپ کو کیٹیگری بنائے گا, آپ کی کیٹیگری 1, کیٹیگری 2, کیٹیگری 3 گروپس کہتے ہیں اس کو. لو رسک گروپ جو لوگ سمجھتے ہیں
लो रिस्क ग्रुप, मॉडरेट रिस्क ग्रुप और हाई रिस्क ग्रुप, ये 3 ग्रुप हैं। और इन ग्रुप के लिए तमाम उलमा ने फतवे दिए हुए हैं कि हाई रिस्क ग्रुप को तो बिल्कुल मना करें कि वो ना रखें। मॉडरेट रिस्क ग्रुप को रखो, अगर वो रखने पर मजिद है तो वो उसको बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ेगा कि इतनी दफ़ा तुमने शुगर चेक करनी है, खानों में ये वो मीनू होगा आपका, खाने में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और जो लो रिस्क हैं उनको बस ठीक है रख लो, एहतियात करो थोड़ा सा, यानी मामूली एहतियात के साथ रोजे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने रिस्क अपने डॉक्टर से पूछने हैं, जो भी जहाँ भी इलाज करा रहा होता है शुगर का मरीज, उससे अपने डॉक्टर से पूछना होता है कि मैं लो रिस्क में हूँ, मॉडरेट रिस्क में हूँ या हाई रिस्क है मेरा, मुझे खत बता दें ताकि मैं उसी हिसाब से फैसला करूँ। फैसला करने का इख्तियार बहरहाल मरीज को है। गन पॉइंट पे किसी को ना तो रोज़ा रखवाया जा सकता है, ना गन पॉइंट पे मना किया जा सकता है कि खबरदार जो रोज़ा रखा, ना हम ये कह सकते हैं और तुम लाजमी रखोगे, ना मैं कह सकता हूँ। सिर्फ इस्लाम का हुक्म ये है कि भाई हर सेहतमंद आदमी पे फ़र्ज़ है तुम ज़रूर रखो। और दूसरा हुक्म ये है कि देखो ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है इस्लाम में, इसलिए मत रखो। तो रखने का मशवरा या ना रखने का मशवरा दोनों हम दे सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आप ही लोगों ने करना है और फैसला आम आदमी मुसलमान नहीं करना है। अब ये डाइट की तरफ आ जाते हैं सीधे सीधे कि रमज़ान में हमारी डाइट वो नहीं होती जो आम हालात में होती है, और वो टाइमिंग भी नहीं होते जो आम हालात में होते हैं। सुबह तो हम लोग कराची वाले तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आराम से सो के उठते हैं। आप कितने बजे सो के उठती हैं? 10-12 बजे? हाँ, 12 के 12 बजे सो के उठती, और उस वक्त नाश्ता होता है, फिर मर्जी हुई तो दोपहर का खा लिया वरना नहीं भी खाया, फिर रात का अपनी मर्जी, अपनी बढ़िया रात पूरी 2 बजे भी खा लेंगे, कोई इशू नहीं है। रमज़ान में ऐसा नहीं है, रमज़ान में फिक्स हैं टाइमिंग कि सहरी कर लिए और सहरी के बाद फिर अपने 15 घंटे तक कुछ नहीं खाना, ये टाइम तो सारे टाइमिंग चेंज हो गए। अब खानों के जब टाइम चेंज हुए हैं तो खाने की नेचर भी तो चेंज होनी चाहिए ना। कुछ ऐसे खाने हमें मुंतखब करने पड़ते हैं ये सहरी में कि जो देर तक चलें, वो खाने जो बस यूँ गए यूँ हजम हो गए वो नहीं चलते, और ना ही वो खाने जो खून में एक तो पहले ही पानी की कमी हो जाएगी सारा दिन में, ऊपर से चिकनाई बढ़ा दें। चिकनाई और खून, पानी की कमी और चिकनाई का बढ़ना दोनों मिलकर जो है ना वो क्लॉट्स बनाने का अमल शुरू करते हैं। तो इसलिए सुबह सहरी के वक्त हमें ऐसे खाने खाने चाहिए कि जिसके अंदर फैट ज़्यादा ना हो, चिकनाई बिल्कुल ना हो, मुरक्कन ना हो, और वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, मॉडरेट। जैसे वो आमतौर पर निहारियों का वो उसका कल्चर आजकल चल पड़ा है कि सुबह सहरी में निहारियों की दावतें हो रही हैं, तो वो बहुत गलत है। अपने आप को खतरे में ना डालें, अपने आप को रिस्क में ना डालें। मुरक्कन खाने बिल्कुल नहीं खाएं। हाँ, अलबत्ता अंडों की इजाज़त है, 2 अंडे आप सुबह सहरी में खा सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से अंडे का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है, रमज़ान में लिए जा सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत थोड़ी मिकदार में सुबह एक हल्का सा पराठा इजाज़त है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि शुगर के मरीजों को कि वाइट आटे का पराठा इस्तेमाल ना करें, लाल आटा अपने लिए इस्तेमाल करें। लाल आटे का पराठा बहुत हल्के से ऑयल के साथ, ऑयल के लिए एक साइंस में इस तरह इस्तेमाल होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी घी जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत जहरीला है। घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सिर्फ थोड़ी मिकदार में ऑयल, हल्का सा वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल हो चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, बहुत हल्की मिकदार में ही डाला जा सकता है। घी ना इस्तेमाल करें और बटर नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मना है शुगर के मरीजों को। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लोग समझते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ बता रहा हूँ कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारी चिकनाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वरना ख़तरे में जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो प्रोटीन, थोड़ी मिकदार में चिकन, थोड़ी मिकदार में फ़िश, और थोड़ी मिकदार में कोई सा भी फ्रूट और वेजिटेबल बेफिक्री से सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी में चल सकता है। और अफ्तार में, अफ्तार का एक हमारे यहाँ का बड़ा गलत ट्रेंड ये बन गया है कि बस अफ्तार हैवी करनी है, पकौड़े भी हैं, समोसे भी हैं, दही बड़े भी हैं, छोले भी हैं, और वगैरह वगैरह हर चीज़ है, और उसके बाद फिर खाना नहीं खाना है। कितने लोग ये करते हैं, बट ये बहुत गलत काम है, बहुत गलत काम है। अफ्तार बराए नाम चीज़ों से, फल से अफ्तार करें, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद बाकायदा वही खाना खाएं जिसकी पूरे साल की आदत है, वही खाने खाएं। गैर ज़रूरी तेल में डूबी हुई पकौड़ियाँ और तेल में डूबे हुए समोसे और तेल में डूबे हुए रोल और तेल में डूबे हुई ये चीज़ें आपको कोलेस्ट्रॉल को इतना बढ़ा देते हैं कि यही वजह है कि पाकिस्तान में जितने सर्वे अब तक हुए हैं कि रमज़ान के आखिर में लोगों का वेट कम होता है या बढ़ता है, बढ़ता है। रमज़ान के आखिर में असूलन तो ये होना चाहिए कि रमज़ान हमें से सिखाता है तक़वा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम वाली आयत में लिखा है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। ये ना आयत तो ये कहती है कि रोज़े तो हमने तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ।
यहाँ हम उल्टा परहेजगार छोड़ो, उल्टा दबा के सूखते हैं और रमज़ान के आखिर में वेट अपना बढ़ा, अच्छा न सिर्फ वेट बढ़ा लेते हैं बल्कि रिस्क बढ़ा लेते हैं, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है उससे। तो हमें अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के ख़तरात को बढ़ा के रमज़ान की बरकतें नहीं समेटनी है, रमज़ान की बरकतें समेटनी हैं तो अपने आप को सेहतमंद रख के समेटनी है, ताकि फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तक़वा इख्तियार कर सके, परहेज़ इख्तियार कर सके। तो इसलिए खानों में बहुत एहतियात करें। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनके एक्सरसाइज के लिए थोड़ी ये एडवाइस होती है कि एक्सरसाइज रमज़ान में जो वो है तरावी और बाकी सारी नमाजें वही अगर भरपूर तरीके से अदा कर ली जाएं, अपने टाइम पे अदा कर ली जाएं, एहतमाम के साथ अदा कर ली जाएं, तो वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। उन पर ये नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे नौजवान लड़कों में ये ट्रेंड है, सहरी खा के जो सोए हैं तो मगरिब पे उठे हैं, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप नमाजें अगर आपने अदा नहीं की, एक जो सबसे पहला फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो तीसरा फ़र्ज़ कैसे अदा करेंगे? नमाज के बाद आता है रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज, पहले कलमत ईमान है, ईमान के बाद रोज़ा है, नमाज है, नमाज के बाद रोज़ा है, रोज़े के बाद ज़कात है, तरतीब ये है ना। तो आप नमाजें पढ़ते नहीं है जो लोग, वो नमाजें पढ़ें, एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छी खासी। और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो करना चाहते हैं वो नौजवान लोग जो है वो अपनी क्रिकेट की एक्टिविटी या दूसरी एक्टिविटी रात को क्या कर सकते हैं। और जो बाकी लोग वॉक करने के जिनका है वो वॉक फर्स्ट हाफ में करेंगे, सेकंड हाफ में बिल्कुल नहीं करेंगे। वॉक करने का जिनको शौक है वो सहरी के बाद का जो टाइम है, सुबह 10 बजे का जो टाइम है उस पर वॉक कर सकते हैं, सहरी से पहले का टाइम उस पर कर सकते हैं, लेकिन जोहर के बाद बिल्कुल कोई वॉक नहीं। फिर एक और छोटी सी जो चीज़ें हैं कि शुगर टेस्ट करने की आम दिनों में आप लोग घर में मशीन रखते हैं और उसको हम कहते हैं SMDG करके लाए हो, हाँ जी लाए हैं, वो फ़ौरन मेरे आगे कर देते हैं वो पर्चा जिसमें आपने घर पे शुगर चेक की होती है। रमज़ान में इसका और ज़्यादा एहतमाम करना होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMDG चार्ट भरना रमज़ान में और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आम हालात में सारा साल करें ना करें, रमज़ान में ज़रूर आप रेगुलर शुगर चेक कर करके लिखें और वो ले जाके डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब सहरी से पहले इतनी थी, सुबह 10 बजे इतनी थी, ज़ोहर के वक्त इतनी थी और असर के बाद मगरिब के बाद ये हालात हो गए। अच्छा, अब थोड़ी ये हिदायत है कि अगर घर में चेक कर रहे हैं और किसी की अचानक जो है वो दोपहर के वक्त 100 आ गई ज़ोहर के बाद, तो अब जो किसी की अगर दोपहर ज़ोहर के बाद 100 के करीब आ गई, अब वो उसको तमाम काम अपने छोड़ देने चाहिए और आराम करें ताकि वो रोज़ा उसका खैरियत से गुजर जाए, तोड़वाना ना पड़े, खुलवाना ना पड़े। चेक बार बार 2-2 घंटे बाद करते रहें। और असर के बाद अगर असर के वक्त 70 हो जाती है, 70 से नीचे जाए तो हुक्म है तमाम मुज्तहिदीन का और तमाम उलमा का खोल ले रोज़ा, आपको मिल जाएगा सवाब उसका। क्योंकि रोज़ा तो हिसाब किताब अल्लाह और बंदे के दरमियान है, उसका कोई कैलकुलेटेड कहीं नहीं लिखा हुआ है 70 गुना 100 गुना नहीं, ना 70 गुना ना 100 गुना। रोज़े का हिसाब तो मैं हूँ, अल्लाह ने कहा है। तो आपने नियत की अच्छी की थी, अपने मेहनत की थी, लेकिन खतरे में जाने लग रहे हैं तो 70 से नीचे रोज़ा खोलने का हुक्म है तमाम दुनिया के मकातिब फ़िक्र के उलमा का और डॉक्टर्स का। ये 70 से नीचे जा रही है, ख़ास तौर पे उस वक्त दोपहर के बाद। तो हाँ अलबत्ता दोपहर तक अगर 100 तक है तो एहतियात से लेट बैठ जाए आराम से, ताकि शुगर और लो ना हो मज़ीद। तो ये एहतियातें करनी है। अगर 300 से ऊपर जाए फ़ौरन डॉक्टर के जाए, उस वक्त भले रोज़ा ना तोड़े, रोज़ा ना खोलें 300 से ऊपर पर, लेकिन डॉक्टर के चले जाए, अटेंड करें डॉक्टर को। डॉक्टर साहब आज 300 से ऊपर हो गई, फिर डॉक्टर प्लान करके उसको काम करेगा। ये उनके लिए है जो रोज़ा रखना चाह रहे हैं, जो नहीं रखना चाह रहे हैं उनमें उनको लिए कोई इनमें से कोई भी हिदायत नहीं है। वो तो जैसे पूरा साल चल रहे हो पूरा साल चलते रहे। लेकिन जो आपके दोस्तों अहबाब में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो रोज़े रख रहे होंगे और उसी नारे के तहत कर रख रहे होंगे, जो नारा हमारे यहाँ की मस्जिदों से भी अक्सर बुलंद होता है, मर जाओ रोज़ा नहीं छोड़ो। इस्लाम में नहीं है ये चीज़, इस्लाम में कहीं नहीं है ये चीज़। ये मैं आपको पूरी वसूख से और पूरे ईमान के साथ बता रहा हूँ। इस्लाम में ये नहीं है कि ट्रक के आगे पहुँच जाओ, नहीं, वो तो खुदकशी भाई हराम है। जानते पूछते मौत को दावत देना हराम है। और मर जाओ रोज़ा ना छोड़ो तो कुरान की खिलाफ वर्जी है। कुरान तो कह रहा है ये लोग ना रखें, कुरान अल्लाह ने तो मना किया हुआ है। और हम मौलवी हमारा कहे या कोई और कहे कि मर जाओ रोज़ा नहीं छोड़ो, तो वो तो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। तो ये ज़रा सा नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है। और ये जो मैं आपसे आपके मैंने 15-20 मिनट लिए हैं, इसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इतने बर्दाश्त कर लिया आपने मुझे 15-20 मिनट। और इसके अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा और मेरी तरफ से बहुत बहुत माज़रत कबूल करें। इससे हमारे लोगों को फ़ायदा है ना। जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। अगर आप समझते हैं इसको तो इसको आगे फैलाएं इस मैसेज को। और आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी मेरी तरफ से तो जारी रहती है। साल हर साल से मैं ये कर रहा हूँ। तो बस अल्लाह कबूल फरमाए हमारी मेहनतों को और हमारी नियतों में और इखलास डालें। अस्सलाम वालेकुम।